स्वेटशर्ट पहन के अरे मतलब मटेरियल नायलॉन का नायलॉन का कैसे और क्या निकल जाएगा पंखा लगा सारा टाइम आगे चल देना सब पे तो 345 या डोला पाउच में क्या है Okay, so the last class we already completed subsidiary books का part 1, right? 2 That is जैसे part 2 that is basic subsidiary books, 4 books we did. Purchase book, sales book, purchase return and sales return. So now we are on to the 5th book, that is cash book. Okay, so all of you take page number 9. Page number 9. Remember the format of cash book? Page 9. What is the format of cash book? याद है आपको? क्या है याद है? सबसे पहले तो it has got receipt side and payment side. बराबर है? Yes. Yes. Okay, but here instead of 2 columns you have triple column cash book. Okay. हाँ, triple column में क्या रहता है याद एक बार बताया? Yeah, discount, cash and bank. It is not a double column but a triple column cash book. तो कॉलेजेस में फैशन में होता है
You draw the column. Instead of 2 column, you have 3 columnar cash book, triple column. Triple column में you'll have discount, cash and bank. Okay, discount on the debit side is discount allowed and discount on the credit side is discount. Where do you put discount normally in the 12th standard? Where do you put discount entries in journal prop? बराबर है? But in CA exams, okay, it will be a triple columnar cash book and discount on the debit side is discount allowed, discount on the credit side is discount received. इधर ही discount आ जाएगा. This is which discount? Trade discount or cash discount? Cash discount. Okay, cash discount. Draw कर लो. Sure. Let's continue. See now how to do the entries of cash book with three columns, okay, triple columns. इससे पहले थोड़े बहुत rules of cash and check you need to remember. What are the rules for cash and check? मुझे बताओ cash received is which account debit? Cash account. बराबर है? Bearer check received is cash account debit. Cross check received bank account. Because it is assumed that cross check is deposited into bank on the same day. Then any check issued is which account? Any check issued is bank account. Okay? Any check issued is bank account. Any check issued is which account? Bank account. बराबर है? कोई भी चेक इश्यू किया है तो इट इज बैंक, पैसा आपके बैंक से जाएगा. Then we saw check आज आया और आज ही डिपॉजिट कर दिया बैंक में, then बैंक. बट आज चेक आया और 2-3 दिन बाद डिपॉजिट किया तो आज क्या होगा? कैश. और बाद में जब डिपॉजिट करेंगे तब बैंक टू कैश कॉन्ट्रा. आज आया है तो कैश, 2-3 दिन बाद जब बैंक में डालेंगे तो इट विल बी बैंक टू कैश कॉन्ट्रा. बराबर है? बैंक एसेट बढ़ेगा, कैश एसेट घटेगा. देन वी हैव एंडोर्समेंट ऑफ चेक. व्हाट इज एंडोर्समेंट? आया हुआ चेक किसी को फॉरवर्ड किया, उसको क्या ट्रीट करने का? कैश. आया तो भी कैश और गया तो भी कैश. बराबर है? एंडोर्स चेक इज ऑलवेज कैश. देन डिसऑनर ऑफ चेक. व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ डिसऑनर? रिवर्स द एंटायर एंट्री. बैंक टू राम है तो राम टू बैंक, अजय टू बैंक है तो बैंक टू अजय. But one thing is peculiar about dishonor entry. Anyone remembers?
Dishonor entry should always have party's name. Dishonor entry should always have party's name. मतलब अगर ओरिजिनल एंट्री था आपने फर्नीचर खरीदा और चेक इश्यू किया फ्रॉम राम, फर्नीचर परचेज एंड चेक इश्यूड, सो व्हाट इज द एंट्री? फर्नीचर टू बैंक, बराबर। और ये चेक डिसऑनर हो गया तो बैंक टू फर्नीचर नहीं, बैंक टू राम, बैंक टू फर्नीचर नहीं आएगा, बैंक टू राम आएगा। बोलने का मतलब इफ इट इज डिसऑनर देन एंटायर एंट्री वुड बी रिवर्स ट्रू बट विथ पार्टीज नेम, क्योंकि पार्टी से पैसा लेना बाकी है, पार्टी को पैसा देना बाकी है, बराबर है। फर्नीचर टू बैंक का बैंक टू फर्नीचर नहीं, बैंक टू फर्नीचर विल अमाउंट टू सेल ऑफ फर्नीचर, so it won't be bank to furniture, it will be bank to Ram. Is this clear? Got it? Hello? Now see page number 9. Cash in hand is 1500 and cash at bank is 7500. That is to balance or by balance? To balance BD. Cash in hand is 1500, cash at bank is 7500. You got it? 1st September 2016. Okay? Mila? Then cash purchases from Sunil at the rate of 5% CD. Opening. Cash purchases from Sunil at the rate of 5% CD by issuing a check of 2850. Cash purchases मतलब what is your entry? Purchase to cash, but by issuing a check, so entry क्या बन जाएगा? Purchase to bank, to discount receipt because CD भी है. But is that 5% after? Is that 2850 after CD or before CD? CD काटने के बाद it is 2850. तो before CD क्या होगा? Can you take a guess? 3000. Okay, nearest round figure का एक shortcut बताया था आपको. अब तो कैलसी भी आपके पास. ये 95 हुआ. 5% काटने के बाद मतलब this is 95. So what is 100? So 2850 into 100 upon 95. We still get the same answer. Okay, that is 3000. So how will you post the entry? Entry is purchase to bank to discount. याद है पहले कैसे करते थे? परचेज टू बैंक यहाँ लिखते थे, परचेज टू डिस्काउंट जेपी में लिखते थे, बट यहाँ कैसे करना है? परचेज टू बैंक टू डिस्काउंट, तो इधर आ जाएगा बाय परचेज अकाउंट बैंक कॉलम 2850, नरेशन भी लिखना है यहाँ पे, राइटिंग शॉर्ट नरेशन, कैश परचेज, बाद में एग्जाम में लॉन्ग नरेशन लिखना है आपको, एंड दिस इज ऑन सेकेंड, सॉरी अभी शॉर्ट नरेशन लिखो जो मैं लिख रहा हूँ ना, 2 वर्ड नरेशन यू राइट, प्रॉपर्ली एग्जाम में बीन के साथ शुरू करना। अब 2850 बैंक कॉलम 150 किधर जाना चाहिए? डिस्काउंट, so डिस्काउंट कॉलम में 150. What is the basic difference? So instead of writing the entry, full entry, purchase to bank to discount, purchase to bank and purchase to discount in JP, you write that discount in the discount column. That is the different part. Okay. The discount on the credit side is discount received, and discount on the debit side is discount allowed. Okay. Received a check on account from Hemal for 3250 and full settlement of 3300. क्या होगा entry? I think check आया है तो bank discount to Hemal, right? Next question है. Very good. कभी भी चेक रिसीव करो तो फुदक के सीधा बैंक में नहीं लिखना है, देखने का क्या वो चेक किसी और दिन पे तो डिपॉजिट नहीं हो रहा. Is that check being deposited on some other day, or if it is getting endorsed on some other day, then how will you treat that check? Cash. इधर पढ़ो क्या दिया है. Received a check on account from Hemal, but आगे क्या दिया है? Deposited the above check in the bank. Is it deposited on the same day? No. So आज क्या एंट्री करेंगे? Cash discount to Hemal. Discount भी है ना? So to Hemal account, which column? Cash column. And what about that discount? सीधा डिस्काउंट कॉलम. जेपी वेपी में लिखने की जरूरत नहीं, हैबिट होता है ना, जेपी में चला जाता है.
जेपी में नहीं जाएगा, ये डिस्काउंट कहाँ जाएगा, सीधा डिस्काउंट पर. ओके, दैट इज द बेसिक डिफरेंस. दिस इज चेक रिसीट, दिस इज चेक रिसीट. What is the date? 5th. Okay, understood? Got it? Then 8th one, issued the following checks. What do you mean by issued the following checks? Oh, sorry, deposited book. Deposited the above check. What is the entry for deposited the above check? Bank to cash. Bank bada, cash beta. What have you treated this check as? Cash. Putting that money in the bank. So what will happen? Bank will increase and cash will decrease. So bank to cash. So bank में आएगा to cash. बैंक में आएगा to cash. और cash में आएगा by bank. A small c in the LF column. Why? Contra. Is this clear? Bank में to cash, cash में by bank. A small c in the LF column for contra. Okay, short narration. This is check deposited. This is check deposited. Okay. कॉन्ट्रा किसके लिए, सी किसके लिए लिखा जाता है, याद है आपको? हाँ, बट इसी में क्यों सी लिखते हैं कॉन्ट्रा एंट्री, बाकी किसी एंट्री में नहीं लिखते हैं? कैश और बैंक दोनों है तो हाँ हाँ, तो बाकी सब में सेम ही अकाउंट में हो रहा है. इसका पोस्टिंग कोई और अकाउंट में होने वाला नहीं है. बाकी तो ये परचेज जाएगा परचेज अकाउंट में ना, तो उसका पेज नंबर आता है. ये हेमल जाएगा हेमल अकाउंट में, तो उसका पेज नंबर लिखा जाता है. एलएफ होता है किसके लिए, पेज नंबर. ये जर्नल है, इसमें एलएफ क्यों होता है कि जिस पेज नंबर ऑफ लेजर पे पोस्ट हुआ है उसका पेज नंबर यहाँ पे लिखा जाए. तो इनका तो पोस्टिंग यहीं पे खत्म हो गया. कैश भी इधर ही है और बैंक भी इधर का इधर ही है. बात समझ में आई? हेलो. तो बैंक टू कैश और कैश टू बैंक में कोई अलग जगह पोस्टिंग होने वाला नहीं है. दैट्स व्हाई वी राइट सी. ओके. इश्यूड द फॉलोइंग चेक्स. व्हाट डू यू मीन बाय इश्यूड द फॉलोइंग चेक्स? गया तो बैंक से ही लिखना है, बराबर है. सो इंटरेस्ट ऑन लोन बोरोड. व्हाट इज द एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन? बाय इंटरेस्ट ऑन loan. Interest on loan to bank. So buy interest on loan. Which column? Bank column 125. Interest on loan. This is interest on loan. Then 2000 to Shamal in full settlement of 2200. What will you write? Buy Shamal account. Shamal to bank. So buy Shamal. बराबर है. Bank column 2000. And 200 किधर चला गया? डिस्काउंट में चला गया. 200 will be transferred to discount. Okay, this is check issued. Then inserting an advertisement in Indian Express. What entry you pass for giving advertisement? By advertisement. It is basically advertisement to bank. Advertisement to bank. Okay. This is 250 bank column. This is advertisement expense paid. And what else do we have? 750 to Khaitan for fan purchase for office use. Very good. Buy fittings. Buy fittings. Buy fittings. Which column? All went into bank column. Why? Issued check. Issued check. Issued check. So remember very clearly, cash book is like a journal as well as ledger. ये एक ही ऐसा सब्सिडरी बुक है जो जर्नल तो है ही, बुक ऑफ प्राइम एंट्री तो है ही, उसके साथ साथ क्या है, लेजर भी है. मतलब यही कैश अकाउंट है और यही बैंक अकाउंट. ओके. तो कैश बुक इज द ओनली सब्सिडरी बुक विच इज जर्नल एज वेल एज लेजर. प्राइमरी बुक भी है और सेकेंडरी बुक भी यही है. सेकेंडरी मतलब सारे लेजर नहीं है इसमें, खाली दो ही लेजर अकाउंट है. कौन से? कैश और बैंक. बराबर है, कैश एंड बैंक.
Ninth one, the bank informed us that the check deposited on 6th April returned dishonored. जब भी डिसऑनर होता है एक एंट्री रिवर्स करना कि शुरुआत से सब कुछ रिवर्स करना? शुरुआत से सब कुछ रिवर्स करना है। तो जब चेक आया था तब आपने क्या एंट्री मारी थी? देखो, कैश डिस्काउंट अलाउड टू हेमल। फिर ये चेक हमने बैंक में डिपॉजिट किया तो क्या एंट्री की? बैंक टू कैश। अब इसको पहले वाले को उल्टा करो, दूसरे वाले को, कि दोनों को? दोनों को उल्टा करेंगे, लेकिन इधर ऑलरेडी कैश गेट्स नलिफाइड। सो व्हाट आर वी लेफ्ट विद? बैंक डिस्काउंट टू हेमल। इसको क्या करना है उल्टा, तो क्या बनेगा? हेमल टू बैंक टू डिस्काउंट allowed. Hemal to bank to discount allowed. Am I right? How will you post this? Hemal to bank to discount allowed. क्या लिखेंगे? By Hemal account. Which column? Bank column 3250. Is that right? And discount will go in discount column. This is being checked dishonored, being checked dishonored. वो पता है रिवर्सल ऑफ डिस्काउंट का नोट लिखते थे हम लोग, ये रिवर्सल ऑफ डिस्काउंट यहीं पे चला जाएगा। एक्चुअली दिस इज नॉट करेक्ट, यू हैव क्रेडिटेड डिस्काउंट, एक्चुअली यू आर सपोज्ड टू रिवर्स डिस्काउंट अलाउड, बट ट्रिपल कॉलम में ये फ्लॉ है, इसके लिए हम लोग वो डबल कॉलम यूज करते हैं और जेपी में लिखते हैं, बट ये ट्रिपल कॉलम का फ्लॉ है, यू डोंट हैव अ चॉइस। सीए में ट्रिपल कॉलम ही, एक्चुअली ये डिस्काउंट रिसीव नहीं है। What is it? Reversal of discount allowed. But either you don't have any other call for reversal. Okay? Clear with this? जब चेक आया था तो डेबिट साइड, डिसऑनर हुआ तो क्रेडिट साइड, पार्टीज नेम इज ऑलरेडी देयर एंड रिवर्स द डिस्काउंट। अब मुझे बताओ हेमल से वापस कितना पैसा लेना बाकी है? 3250 की 3300। एक बार डिसऑनर हो जाता है उसके बाद डिस्काउंट रहता नहीं, उसके बाद भी अगर उसने पैसा दिया हमने अलाउ किया डिस्काउंट, इसका मतलब 3250 विद इन द टाइम पीरियड, तो फिर हम अलाउ करेंगे, वरना डिस्काउंट अलाउ करने वाले नहीं। नेक्स्ट 10th one, Hemal paid cash for the amount given, retained the benefit of discount. Why the hell are we allowing discount? Within time period. What entry you pass again? To Hemal. Which column? Cash column. And वापस allow किया तो 50 rupees discount. बराबर है? Is this clear, guys? Hello? Hemal का कहानी समझ में आया? पहले पैसा आया, फिर उसको डिपॉजिट किया, फिर वो चेक हो गया बाउंस, वापस हेमल से हमें पैसा आया, बट विच कॉलम डिड वी राइट इट इन? कौन से कॉलम में लिखा दिस टाइम? कैश कॉलम। ओके, वी हैव रिसीव्ड कैश। इज दिस क्लियर? देन व्हाट नेक्स्ट डू वी हैव? Sold goods to Premal at 10% TD and 5% CD and received a check of 3420. वापस चेक आया. Should I write bank or cash? Cash. Why? Next question. Very good. Next line endorsed किया. मिला? तो बताओ क्या एंट्री करेंगे? Sold goods to Premal and check received. To Premal या to sales? To sales. Which column? Cash column. 3420. What about that discount? 180. You got how? Nearest round figure on the higher side या फिर cross multiply. Take your calci. 3420 into 100 upon 95. 95% है ना? 3420 into 100 upon 95. 100 is what? You have to find out. आपको जो मिला है वो आफ्टर CD अमाउंट है ना? 95. तो 3420 into 100 upon 95. परफेक्ट आंसर मिल जाएगा. कैलसी निकाल के रखो साइड में। 180 रुपीज आया डिस्काउंट गाइस। हेलो हेलो हेलो, मिला? कैश सेल्स, डिड यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? देन दिस चेक हैज बीन एंडोर्स्ड टू प्रेमल, सॉरी ये प्रेमल से आया। दिस चेक इज एंडोर्स्ड टू कोमल इन फुल सेटलमेंट ऑफ 3500. व्हाट एंट्री यू पास फॉर एंडोर्समेंट? By Komal. But which column?
Why cash column? सर 3600 है अमाउंट. हाँ सॉरी. तो हो गया ना 3600 में से 3420 हो गया तो 180 बराबर है. अभी बाय कोमल कैश कॉलम 3420 in settlement of what? 3500. So what is that 80 rupees? Discount. इधर वो एक्स्ट्रा जेपी का लफड़ा है ही नहीं. अलाउड है डिस्काउंट तो डेबिट साइड के कॉलम पे डाल दो, रिसीव्ड है तो क्रेडिट साइड के कॉलम पे डाल दो. समझ में आया? दिस इज योर डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, दिस इज योर डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट. साथ साथ में काम हो रहा है दोनों. दिस इज चेक एंडोर्स्ड. चेक एंडोर्स्ड. The date is I think 18th. What next? Bank has sent an intimation stating Mr. Bimal, a customer, directly deposited 1500 into the bank. क्या होगा एंट्री? विमल भैया ने डायरेक्टली बैंक में पैसा डाला. बैंक टू बिमल. बैंक टू बिमल कितना आएगा? बैंक टू बिमल 1500 रुपया. Bank to Bimal 1500. This is direct deposit. Am I right? Bank to Bimal. This is direct deposit. Is this clear? Okay. Bank to Bimal. Bank has debited our account with 45 being bank charges. By bank. क्या होगा एंट्री? By bank charges. Which column beta? Bank column. These are bank charges. Bank charges. बराबर है? Is this clear? Hello? Received the following checks and deposited them on the same day. What do you mean by this? Received the checks and deposited them on the same day. तो सीधा बैंक कॉलम. पहला वाला कहाँ से है? फॉर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर. सो व्हाट एंट्री विल यू पास? टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 125. व्हिच कॉलम? बैंक कॉलम. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 125 बैंक कॉलम. Oh sorry. This is 500 bank column. Interest on debentures, date is 24. Hello? And again, 2500 for sale of old machinery. What is the entry? To sale of machine ki to machine? Sale of machinery ki to machinery? To machinery. क्यों? Why not sale of machinery? Asset में multiple accounts नहीं होता. Asset के लिए multiple accounts नहीं होता. होता है? नहीं होता. Withdrew from bank for office use 500 and personal use 150. What is the entry for withdrawing for office use? Cash to bank. Cash to bank. It's a contra again. How will you post? Cash to bank. So cash में to bank और बैंक में by cash. कैश में टू बैंक, बैंक में बाय कैश 2500. That is 500. This is contra for cash to bank. And personal use के लिए भी निकाला है. What is the entry for withdrawing for personal use? Drawings to bank. So by drawings, which column? Bank column. By drawings, bank column. Is this clear? Got it? By drawings, bank column. Okay, this is personal use. Cash withdrawn for personal use. Got it? Okay. Cash withdrawn for personal use. So it's 24th. Retained rupees 1000 as cash in hand and transfer the excess amount to savings, and also retaining 1500 in the bank, transfer the excess to savings. What do you mean by this?
1000 Bank का to 1500 cash. बैंक बाकी सब पर्सनल अकाउंट। क्या बोल रहे हैं? वापस पढ़ो। Retained 1000 and cash and transfer the excess to savings. And retained 1500 as bank and transfer the excess to savings. Drawing. Cash to drawings to cash. Drawings to cash और drawings to bank, लेकिन 1000 और 1500 drawings नहीं है। उतना रखना है, बाकी का गया तुम्हारा सेविंग्स में। तो उसके लिए पहले करना है डेबिट माइनस क्रेडिट। तो बताओ कैश का डेबिट माइनस क्रेडिट, कैश का डेबिट कितना है? करो टोटल। 11920 डेबिट है, माइनस क्रेडिट करो कैश का 6670, राइट? बैलेंस कितना आया? 5250, लेकिन रिक्वायर्ड कितना है? सिर्फ 1000। एक्सेस कितना है? 4250। ये चला जाएगा किधर? सेविंग्स बोले तो क्या? ड्रॉइंग। सेम वे यू डू फॉर बैंक। बैंक का डेबिट्स कितना है? 15 to 50 आया, माइनस 9920। क्रेडिट्स आर 9920, राइट? 15 to 50 आया डेबिट्स बैंक का, ये 9920 है, तो बचा कितना? 5330, लेकिन इतना रिक्वायर्ड नहीं है। रिक्वायर्ड कितना है? सिर्फ 1500। उसके ऊपर एक्स्ट्रा कितना है? 3830 को किधर ट्रांसफर कर दिया? सेविंग्स बोले तो ड्रॉइंग्स। इज दिस क्लियर? डिड यू गेट द लास्ट पार्ट? क्या कहना चाह रहे हैं? लास्ट पार्ट में आपको क्या बोलना चाह रहे हैं? Kept ₹1000 in cash balance and 1500 as bank balance. Transfer the excess amount to savings. मतलब पहले ढूंढो आपके पास कितना कैश है और कितना पड़ा हुआ है बैंक में। कैश में कितना है कैसे पता चलेगा? डेबिट माइनस क्रेडिट। तो कितना था अपने पास? 52, लेकिन उतना चाहिए नहीं, चाहिए कितना? सिर्फ 1000। तो एक्स्ट्रा कितना है? 4250 को सेविंग्स में ट्रांसफर कर दो। सेविंग्स मतलब घर पे लेके जाओ। सिमिलरली बैंक में डेबिट माइनस क्रेडिट अभी कितना है? 5330 है अपने पास। दिस इज द बैलेंस, लेकिन इतना चाहिए नहीं, चाहिए सिर्फ 1500। 1500 साइड पे रखा, बाकी का घर पे लेके गया, तो 1500 हटाया, 3830 घर पे लेके गया। समझ में आया? तो बैलेंस में से 1000 और 1500 क्या करो? सब्ट्रैक्ट कर दो। Did you get it? क्या होगा इसका एंट्री? सेविंग्स में लेके गया, घर पे लेके गया, तो बाय ड्रॉइंग्स। कितना होगा बाय ड्रॉइंग्स? 1000 and 1500 या फिर 4250 and 3830? 4250 समझ में आया? ये 4250 in cash and 3830 in bank. This is drawings, personal use. And then you do the balance. Now, any guess what would be the balance automatically? Sorry? 1000 in cash and, क्योंकि हमने ही उतना रखा है सर। मैजिक नहीं है बेटा, डेबिट माइनस क्रेडिट करके देखो वही आएगा, नई चीज नहीं है। Did you understand the last point? ये ऐसा नहीं है कि बैंक में डाल दिया एक्सेस मनी, इधर बैंक में नहीं डाला, किधर ट्रांसफर किया एक्सेस? Where have you transferred the excess to savings account? Okay, you have transferred the excess to savings account. Understood? Now, एक लास्ट गम्मत सुनो। आप कैश और बैंक का तो टोटल लिख दो इधर। कैश का आई थिंक आएगा 11920 और बैंक का आएगा आई थिंक 15250, बराबर है? बट डिस्काउंट कॉलम्स को बैलेंस नहीं करने का, डिस्काउंट कॉलम को बैलेंस नहीं करने का, डिस्काउंट कॉलम्स को टोटल करके छोड़ना है। क्यों? क्योंकि ये जो है ये होता है डिस्काउंट अलाउड और ये जो है ये होता है डिस्काउंट रिसीव। तो इसका टोटल करो खाली, टोटल है आई थिंक 280 और इधर टोटल आ रहा है 480। एज इट इज टोटल करो और छोड़ दो।
इसका पोस्टिंग कैसे होता है लेजर में? देखो मैंने वापस बताया था आपको, दिस इज अ जर्नल एज वेल एज लेजर, दिस इज अ जर्नल एज वेल एज। लेकिन कौन से अकाउंट है यहाँ पे? कैश और बैंक। डिस्काउंट अलाउड और रिसीव्ड का अलग से लेजर अकाउंट बनता है, डिस्काउंट कॉलम है, डिस्काउंट अकाउंट अलग से बनता। फिर याद करो हमने परचेज अकाउंट में क्या लिखा था? परचेज बुक से परचेज अकाउंट लिखा था तभी, टू सन्ट्रीज एज पर परचेज बुक। याद है सेल्स अकाउंट में क्या लिखा था? बाय सन्ट्रीज एज पर सेल्स बुक। सेल्स रिटर्न में टू सन्ट्रीज, परचेज रिटर्न में। वैसे ही डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में जाएगा टू सन्ट्रीज एज पर कैश बुक, एंड डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में जाएगा बाय सन्ट्रीज एज पर कैश बुक। ये अमाउंट 480 एंड 280 टोटल्स जाएगा। क्या जाएगा? टोटल्स। डिस्काउंट कॉलम कभी बैलेंस होने वाला नहीं है, क्योंकि क्यों बैलेंस नहीं होता? क्योंकि ये एक अकाउंट नहीं है, दो अलग अकाउंट है, एक डिस्काउंट अलाउड है, एक डिस्काउंट रिसीव्ड है। ओके बोलो। पर वो जो डिस्काउंट होगा वो तो फिर रिसीव में ज्यादा दिखेगा, तो गलत है। ये फ्लॉ है, इसके लिए हम लोग वहां पे लिखते हैं जेपी में, बट इधर चॉइस नहीं है। रिवर्सल ऑफ डिस्काउंट हमारा इनकम बन जाता है और रिवर्सल ऑफ डिस्काउंट रिसीव्ड एक्सपेंस बनता है। उधर प्रॉपर होता है, जर्नल प्रॉपर, इधर चॉइस। बट दिस इज अ मैनुअल कैश बुक। अगेन इन टैली यू डू सो इट विल गो एट डिस्काउंट अलाउड एंड रिसीव्ड ऑन रिवर्सल अकाउंट में ही जाए, मतलब सेम अकाउंट में ही जाए। मैनुअल अकाउंट का ये फ्लॉ है ट्रिपल कॉलम का, इसलिए आप लोग कॉलेज में ट्रिपल कॉलम यूज नहीं करते, टू कॉलम यूज करते। पहले ट्रिपल कॉलम ही था आपके कॉलेजेस में, इधर उल्टा है, वहां अपडेट हो गया, यहाँ अपडेट नहीं हुआ है। नॉर्मली सीए में पहले होता है, वहां पे नहीं होता। समझ में आया? अभी डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव, वंस अगेन डिस्काउंट अलाउड डेबिट वाला, डिस्काउंट अलाउड में 200 and discount received account में by cent. Will you match or will you find out difference or anything? No. This is a separate account, this is a separate account. Discount allowed account, discount received account. Both the accounts are separate. Is this clear? Understood? I'm not working on the cash and banking. हाँ. ये बराबर होगी चाहिए नीट एकदम। हाँ, that working note should be present. अलग से. Clearly present करना. ये वाला खाली बना, बाकी कुछ मत बना. ये वाला खाली बना. Next sum का draw करो फटाफट. What? Draw for the next sum quick. वो वाला बताने का है, बाकी सीडीओडी का मत, वो वाला बताने का है। अभी I want you all to try this. Next sum number 2, खुद से try करो। All of you try sum number 2 on your own. मुझे बताओ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, ईसीएस सबके लिए क्या यूज करना है? बैंक। फुल फॉर्म पता है? ईसीएस फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम, आरटीजीएस आरटीजीएस फुल फॉर्म रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, एनईएफटी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, आईएमपीएस immediate payment service, okay? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस, ईसीएस सबके लिए क्या फॉर्म में अपना फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट नहीं है, सबके लिए कौन सा अकाउंट यूज करना है? कौन सा बैंक? कौन सा ईयर है सर? ईयर मिसिंग है, छोड़ दो। मॉड्यूल सर 1 मार्च 2 मार्च डायरेक्टली चालू करो, skip the year. Write short narrations, okay? Write short narrations. Okay, tell me one thing. बोर्ड में देखो एक मिनट। आज अजय से चेक आया, ठीक है? और आज के आज विजय को एंडोर्स किया। आज अजय से चेक आया, आज ही के आज एंडोर्स कर दिया, सेम डे। तो एंट्री क्या बनेगी? कैश टू अजय एंड विजय टू कैश, बट सेम डे हो रहा है, तो कैश कैश कट, विजय टू विल गो इन जेपी, विल गो इन, इधर दिखने वाला नहीं। तो इधर क्यों दिखाया मैंने एंडोर्स चेक? कभी प्रीवियस सब में ये डेट अलग, डेट समझना है, डेट सेम है तो वो दिखने वाला नहीं है।
जेपी में चला जाए, ये कैल्शियम मत लेना, अलाउड नहीं है। बैटरी ठीक है चलो, ध्यान से करो, दिमाग लगाओ, खुद का दिमाग लगाओ, मॉड्यूल समय इज्जत से करो। Now it's each 9:50. कितने बजे? आराम से पूछो। सेंटर क्रूज में कौन है किसका दिमाग? लगभग गली लीव इट। चलो गाइस क्विक। डेंटिस्ट ने के પછી ब्रेसेस अच्छे ना? एक महीना में डेंटिस्ट ने आराम से गाइस क्विक चलो। सॉरी सेल्स क्रेडिट कार्ड मतलब बैंक रहेगा ना सर, सेल्स क्रेडिट कार्ड मतलब बैंक का। अभी तो बोला हाँ बैंक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एनएफटी ये सब बैंक, टू सेल्स बैंक। नॉर्मली करो अपने आप आएगा, नॉर्मली जैसे करते हो वैसे सॉल्व करो अपने आप मिलेगा। सर जेपी बनाने की नोट वो तो वैसे भी बैंक में ही जाएगा ना, वो रिसीव्ड चेक के लिए दिया है वहाँ पे। हाँ नोट लिख दे चलिए। क्यों नोट किसका? हाँ उसका नोट ही आएगा, जेपी बनाने की जरूरत नहीं। सबसे वो परचेज बुक सेल बुक क्यों जेपी बनानी है, यहाँ पे सीधा नोट ही है। एक एंट्री आपकी जेपी में जाएगी, उसका नोट बनाना है। जेपी बनाने, जर्नल प्रॉपर बनाने की जरूरत नहीं है। करो करो आएगा। क्रेडिट कार्ड इज बैंक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एनईएफटी सब बैंक। तो खाली क्रेडिट ऑनर ऑफ एंडोर्स चेक जेपी। Endorsed check dishonored will be recorded in journal. दिमाग लगाओ चलो, शॉर्ट नरेशंस लिखना, राइट शॉर्ट नरेशंस।
ऐसे आगे नहीं ना 12 की कुछ एंट्री आएगी ना तो फ्लोट आएगा इसको पीछे वही मस्ती कर रहे सर बाय अलाउइंग डिस्काउंट हाँ तो तो डिस्काउंट ऑलरेडी अमाउंट में डिस्काउंट आ गया है क्या दिया रिसीव्ड पेड दिया तो आफ्टर 10 वाला रिसीव्ड अ चेक है ना हाँ रिसीव्ड एंड पेड इज ऑलवेज आफ्टर डिस्काउंट received check paid check received cash paid cash is always after discount 3600 is after discount endorsed check dishonored will be transferred to will be recorded in नोट में जाएगा ना पूरा चेक से पे ये बाहर वाला office personal use दिया है तो withdrawal चेक उसी दिन डिसऑर्डर हो गया और उसी दिन पैसे पार्टी ने पैसे दिए और हमने दूसरे को वापस dishonor will go in JP but party को पैसा अलग अलग तरीके से दिया एक को कैश एक को चेक ऐसा पर्सनल वर्ड जब तक ना हो ना तब तक सब ऑफिस बिजनेस पर्सनल वर्ड दिया है तो ही पर्सनल अदरवाइज सब ऑफिस
जितने भी टोटल है सब लिखा ही होगा ना। And amount is going to be valid. Go and check. Check the data. डेबिट Sir, bank charge 1% commission on credit or debit card service. By bank. By bank By bank commission. करो डिस्कस। सर से ऑफिस यूज कुछ नहीं दिया तो ऑफिस यूज इसमें नहीं रहता अपना वो एलएफ रहेगा लेजर नहीं रहेगा। डिस्कशन पूरा देखो फर्स्ट वन कैश इन हैंड एंड ओडी एट बैंक। देखो चेक कर लो पहला टू बैलेंस बीडी कैश कॉलम 15,000 एंड बाय बैलेंस बीडी बैंक कॉलम 500 बराबर है। हेलो मिला
Got that? Focus. सुना भी ध्यान से guys. To balance PD cash column 15,000 and buy balance PD bank column 500. Is that clear? Then cash sales are the two sales cash column 3,000. Is that right? सुनना ध्यान से. मेन वो आदित्य और श्रीजन वाला important है. Paid to सुशील brothers and discount received. So क्या लिखेगा? Buy सुशील brothers bank column 3,400. बराबर है? डिस्काउंट कॉलम में 100 रुपया, बैंक कॉलम में 3,400 मिला. सेल्स थ्रू क्रेडिट कार्ड, सो टू सेल्स विच कॉलम? बैंक कॉलम 2,800. डिड यू गेट इट? मिला? मिला? हेलो हेलो हेलो, सॉरी. देन received a check from Srijan. Tell me which column? Cash column. Is that right? So to Srijan, cash column 6,200 क्योंकि endorse हुआ है. Next date आदित्य को endorse किया. What entry will you pass? By Adit. Which column? Cash column. To Srijan, cash column 6,200. By Adit, also again cash column 6,200. Deposited into bank. What is the entry? Bank to cash. To cash bank column, buy bank cash column. That is 6,800. बराबर है? Check कर लो. Received a check from Aviral and deposited same into bank. क्या होगा entry? To Aviral's account. To Aviral's account. Which column? बैंक कॉलम 3,600 और 50 रुपया जाएगा डिस्काउंट कॉलम. बराबर है? 3,600 इज आफ्टर डिस्काउंट. डिड यू अंडरस्टैंड? हेलो, मिला? देन Adit informed that Srijan's check is dishonored. Adit informed that Srijan's check is dishonored. Adit informed that Srijan's check is dishonored. इसका मतलब the endorsed check dishonor हुआ है. तो हमारी गलती थी कि आदित्य की थी, सॉरी श्रीजन की थी. बराबर है? तो दो एंट्री हो रहा है ना यहाँ पे. वो आदित्य से भी चेक वापस आया और श्रीजन को भी दिया. तो कैश टू आदित्य, श्रीजन टू कैश, कैश कैश कट. इट इज श्रीजन टू आदित्य. श्रीजन टू आदित्य कौन से बुक में जाए? जेपी. उसका नोट लिखना है. एंडोर्स्ड चेक डिसऑनर्ड. हाँ, वो बात में अलग से. पहले एंडोर्स्ड चेक डिसऑनर्ड will be recorded in journal proper. Endorsed check dishonored will be recorded in journal proper. Is this clear? Why? समझ में आया? दो एंट्री का रिवर्सल करना है. आदित्य श्रीजन से आया था, आदित्य को दिया था. तो जब श्रीजन से आया था आपने किया होगा कैश टू श्रीजन और फिर आदित्य को दिया तो तभी आदित्य टू कैश. ये दोनों को उल्टा करना है ना? दोनों को उल्टा करना है तो कैश कैश उठ जाएगा. तो क्या बचेगा? श्रीजन टू आदित्य. श्रीजन टू आदित्य will be recorded in JP. वो कैश बुक में आने वाला नहीं है. समझा? हेलो, मिला? Got it? Then you have now cash is received from Srijan and amount is paid to Adit through own check. अभी वापस श्रीजन से पैसा आया, उसका क्या एंट्री होगा? टू श्रीजन विच कॉलम? कैश कॉलम. एंड बाय अदित विच कॉलम? बैंक कॉलम. अब जाके दोनों सेटल हुआ. कितना अमाउंट देख लेना? 3,200, 6,200. ओके. सेल्स थ्रू डेबिट कार्ड, सो वापस टू सेल्स विच कॉलम? बैंक कॉलम 3,200. मिला? withdrawn from bank. What is the entry withdrawn from bank? Cash to bank, which is a contra. To bank cash column, buy cash bank column. बराबर है? Contra cash to bank. Is this clear? Paid to Sanchit by check. So by Sanchit, which column? Bank column 3,000. मिला? Hello? Bank charge 1% commission on sales through debits and credit card. तो डेबिट और क्रेडिट कार्ड में कितना सेल हुआ है चेक करो.
टोटल 6,000 का सेल हुआ है, उसका 1% कितना होता है 60. व्हाट इज द एंट्री फॉर बैंक कमीशन? बाय बैंक कमीशन, बैंक कमीशन टू बैंक, बराबर है. सो बाय बैंक कमीशन व्हिच कॉलम? बैंक कॉलम 60 rupees. By bank commission, bank column 60 rupees. Is this clear? Is this clear? Got it? पक्का? समझा? सबको? हेलो? फिर कर लो बैलेंस कितना आया कैश बैंक का बैलेंस? 19,200 And 840. 1440. 19,200, 1440. Next is petty cash book. याद है petty cash book? Why do we open petty cash book? To record small value cash transaction. Look at the problem. Page 10, sum number 3. पहले बताओ, received a check of 165 to restore an interest of 300. मतलब कितना बैलेंस था कि उसको 165 मिला तो 300 बना. 135 रहेगा ना, तो 165 मिला तो 300 बना, राइट? हेलो, फ्लोट अमाउंट कितना हुआ? 300. आता ना, समझ में आया? इंप्रेस सिस्टम का मतलब पता है? Does the petty cashier get a fixed amount every month? Yes. No. He gets such an amount so that the total amount should be fixed. That total amount is called as float or imprest. Okay? तो इधर आपका float amount क्या है? 300. उसको हर महीने 300 नहीं मिलेगा. Getting the point? हर महीना उतना मिलेगा so that total becomes 300. Is this clear? Next. Paid 45 for traveling expense. किस में जाएगा? Traveling and conveyance. Other columns? Traveling and conveyance में क्या जाता है? All human का traveling, employee का traveling, train fare, bus fare, auto, ola, uber सब. फिर printing and stationery में all the stationery का खर्चा. Postage and telephone में all the communication. याद है columns? Carriage and cartage में क्या? columns necessary वाला, सारा नहीं. मुझे बताओ, columns याद आया? Printing, stationery, postage, telegram, traveling conveyance, carriage, cartage, advertisement. क्या जाता है advertisement में? All publicity expenses. फिर आता है wages, staff welfare, खाना पीना घूमना फिरना, repairs and renewals. Sundry में क्या जाता है? All the expenses cannot be fit in another column. Okay? Crockery, brittle items, glass, cups, saucers, आपका revenue stamps, subscriptions, gifts, charity donation, tips, सब sundry. Okay? चलिए बताओ मुझे, सबसे पहला 45 for traveling किस में जाएगा? Traveling and conveyance. 6 electric bulbs of 5 sundry. Bulb, LED tubes, CFL, सब sundry. But revenue stands for ₹6. Sundry. Revenue stamps is sundry. What about postal stamps? Postage. But paid for printing pamphlets for advertisement. Advertisement and publicity. 1 dozen pencil and half a dozen eraser. Stationery. Telegram charges, postage and telegram. So what columns do we have? I think over here we have printing and stationery. और क्या है? Postage and telegram या telephone लिख सकते हो. Okay, postage and telegram या postage and telephone is also fine. Traveling and conveyance. Sundry. बस एडवर्टाइजिंग है ना? एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी भी है ना? और क्या है? सन्ड्री है. लेजर वगैरह कुछ नहीं है, बराबर है? सन्ड्री. बल्ब, वैनिटी ट्यूब, कप, सॉसर, प्लेट्स, टूटने फूटने वाला आइटम, क्रॉकरी, सब सन्ड्री. इज दिस क्लियर? Got it? Hello? समझा? कॉलम्स याद है कौन से हैं? प्रिंटिंग, स्टेशनरी, पोस्टेज, टेलीग्राम, ट्रैवलिंग, कन्वेयंस, कैरेज, कार्टेज, रिपेयर्स, रिन्यूअल्स, एडवर्टाइजमेंट,
wages, staff welfare, sundry LF ledger. Ledger में क्या जाते हैं? पर्सनल एंड रियल, लेकिन इसमें कोई लेजर नहीं है आपको, सीए एग्जाम्स में लेजर कॉलम नहीं है, ओनली फॉर एक्सपेंसेस, स्मॉल वैल्यू एक्सपेंसेस, लेजर आएगा ही नहीं। 11th में इधर नहीं, एडवांस ड्राइंग्स कुछ नहीं, तो पण लखવાનું ન બનાવશો તો ચાલશે। જનરલી આ બધી આઈટમ મોટા વેલ્યુની હોય, આપણે નાખીએ છીએ 11th में। चलिए कैसे पोस्टिंग कैसे करनी है याद है आपको? वेरी सिंपल, डेबिट के लिए 2, मतलब डेबिट क्रेडिट नहीं है, रिसीट के लिए 2, पेमेंट के लिए बाय। सो 2 बैलेंस बीडी के सीडी, बीडी ऑन 1/1 डेट यार दिया ही नहीं, छोड़ दो। कितना आएगा? 135 की 165? 135 बराबर है, am I right? फिर एक और 1/1 को क्या आएगा? 2 बैंक या 2 कैश? 2 बैंक अकाउंट 165, is that right? Hello? मिला? Then paid for traveling expense, so 2 की बाय बाय, इधर आप क्वेश्चन छाप सकते हो, बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंस, विच कॉलम? ट्रैवलिंग, हाँ। अकाउंट किसके लिए लिखना है? पर्सनल और रियल के, बाकी किसी में अकाउंट लिखने की जरूरत नहीं है। अकाउंट बेसिकली पर्सनल और रियल के लिए। बाय इलेक्ट्रिक बल्ब्स किसमें जाएगा? 6 पैसा 30, this is sundry. Revenue stamps, so buy revenue stamps, which column? Sundry. Postal है तो postage, this is revenue, so it is sundry. Then printing pamphlets for advertisement. देखो pamphlets, brochures, catalog print किया तो किसमें जाना चाहिए? एडवर्टाइजमेंट। लेकिन ऐसा दिया है प्रिंटेड बिल बुक, प्रिंटेड वाउचर बुक, प्रिंटेड रिसीट बुक, तो किसमें जाएगा? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। पर्पस क्या है वो मैटर करता है। दिस इज बाय पैम्पलेट्स, इधर जाएगा पैम्पलेट्स, तो इट इज एडवर्टाइजमेंट, बराबर है। पेंसिल्स एंड इरेजर्स किसमें जाएगा? Pencils and erasers, it is printing and stationery. Then telegram charges, so buy telegram charges. Where do you put telegram charges? Postage and telegram. That's it. How do you shut down a petty cash book? Remember? Total of the payments horizontally and vertically, बराबर है। फिर क्या करो, ये कॉमन टोटल लेके आओ, यहाँ पे कितना आ रहा है? ये 199, बराबर है 199, sorted. That's total of payments. Then you write total of receipt. Which side will be bigger? Obviously, हाँ जी, कौन सा साइड बड़ा होगा बेटा? रिसीट साइड बड़ा होगा, बराबर है। रिसीट 300 है, पेमेंट 199 है, तो बैलेंस बचा 101। इज दैट राइट? By balance BD के CD, CD on 31/1 will become what? Total के नीचे 2 balance BD, कितना है 2 balance BD? 101। और नेक्स्ट मंथ के बिगिनिंग में एक और चीज करके रखनी है आपको, फ्लोट। कितना है फ्लोट? 300 है ना फ्लोट।
तो क्या लिखना है? टू वापस टू बैंक अकाउंट कितना लिखेंगे दिस टाइम? 199. To make up 300, how much you are supposed to receive? 199. Is this clear? अभी एक और चीज पूछा है वहां पे, लेजर अकाउंट, पोस्ट इट इनटू लेजर, तो कौन सा लेजर बनाना है? ये कर लो पहले। पेटी कैश अकाउंट बनाना है, ये भी हमने किया था, याद है 11th में एक लेक्चर में लास्ट में दो तीन अकाउंट बनाए थे पेटी कैश, दो अकाउंट बनाए, दो सौ पेटी कैश अकाउंट बनाना है, सिर्फ एक पेटी कैश अकाउंट। तो जहां उधर ही जगह है आपका, उधर ही बन जाएगा, छोटू सा आधा 7-8 लाइन का बना लो, 7-8 लाइन्स। लेजर अकाउंट, पेटी कैश अकाउंट, जस्ट मेक दैट। These are all the basic chapters, okay? All these chapters you have already done in 11th. और इनका वेटेज इज मैक्सिमम 5 मार्क्स। ये सब चैप्टर का मिला के 5 मार्क्स है। जर्नल, लेजर, सब्सिडरी, कैश बुक, पेटी कैश बुक सब मिला के 5 मार्क्स। 5 मार्क्स से ज्यादा नहीं आएगा। और वो भी नसीब आया तो, आज तक एक भी पेपर में पेटी कैश बुक पूछा ही नहीं। जस्ट सेइंग, कैश बुक एक आध पेपर में पूछा है, सब्सिडरी एक आध में, किसी में एक भी नहीं पूछा है, ना जर्नल, ना सब्सिडरी, ना कैश बुक, कुछ भी नहीं। तो नसीब रहेगा तो आएगा, क्योंकि एकदम चिंदी है ना 11th का बेसिक्स। आना चाहिए, पता होना चाहिए, मॉड्यूल का सम आना चाहिए, बस वो टारगेट रखना है। मॉड्यूल आता है गारंटी 85-90 प्लस गारंटी, बाकी तो 95 के ऊपर जो है वो बोनस आपका। मॉड्यूल अच्छे से आता है तो अकाउंट्स 90 यू कैन क्रॉस इजीली। प्रॉब्लम ये है कि बच्चे मॉड्यूल ही नहीं करते। लास्ट टाइम भी भेजा था ग्रुप में, कितना लोग ने देखा मॉड्यूल? सब्सिडरी बुक्स, आज अभी देख लेना इज्जत से, पूरा सब्सिडरी बुक विद परचेज बुक, सेल्स बुक, रिटर्न्स बुक एंड कैश बुक पूरा। जर्नल हो चुका है, लेजर हो चुका है, आज सब्सिडरी बुक पूरा देखना। कैश, पेटी कैश, सब्सिडरी सब कुछ। नेक्स्ट क्लास नया टॉपिक है, करवाने वाला हूं जो 11th में नहीं है आपको, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट। थैंक यू છે લાસ્ટ ક્લાસ બેટા। परचेज बुक, सेल्स बुक બધું થઈ ગયું છે। गुड मॉर्निंग सर सब्सक्रिप्शन भी आप तो चलो अभी सब्सक्रिप्शन इस साइड, इधर देखो, ये अकाउंट कैसे बनाना है याद है किसी को? सबसे पहले पेटी कैश में क्या लिखना है? टू बैलेंस बीडी। कितना बैलेंस था? 135। फिर क्या करना है याद करो? टू बैंक अकाउंट, पेटी कैश टू बैंक, पेटी कैश टू बैंक कितना? 165। एम आई राइट? पेटी कैश टू बैंक 165 बराबर છે। Right? What next? Will you record again all the names of all the expenses? You have to write these. These are the total of account. These are the account heads. So what you need to write is by sundries. By sundries as per petty cash book. By sundries as per petty cash book. On which date? Last. An individual column total सीधा। Printing and stationery कितना है? 18। Postage and telegram कितना है? 25। Traveling and conveyance कितना है? 45। Advertisement and publicity कितना है? 75। And sundry कितना है? 36।
Is this clear? Please focus. Don't talk. Mila? Got it? Hello? And then you do the balance. So, what would be the balance? This is 300. And this would be by balance BD के CD. Now this would be 101. It will become 2 balance B. And then again 2 bank, which is 199. बोलने का मतलब you are not supposed to write again all the expenses. Why? Again सारे individually क्यों record नहीं किए petty cash में? Already इधर लिखा हुआ है. ऑलरेडी लिखा हुआ है. जैसे परचेज बुक सेल्स बुक में नाम लिखे थे ना आपने, ऐसे यहाँ पे ऑलरेडी एक्सपेंसेस है, तो इधर क्या लिखना है? सीधा टोटल्स. बट सुनो ध्यान से. सपोज आपको प्रिंटिंग अकाउंट पूछा है, तो पूछेगा नहीं, जस्ट अंडरस्टैंडिंग. प्रिंटिंग अकाउंट पूछा है, तो प्रिंटिंग अकाउंट में 2 सेंट्री नहीं, प्रिंटिंग अकाउंट में 2 पेटी कैश डेट वाइज, जैसे नॉर्मली किया ना यहाँ पे. प्रिंटिंग में 2 पेटी कैश आएगा ऑन कौन सा डेट है? 24. पोस्टेज में 2 पेटी कैश आएगा 30 तारीख को. ट्रैवलिंग में 2 पेटी कैश आएगा 1 को. एडवर्टाइजमेंट में 2 पेटी कैश आएगा 17 को. इज इट क्लियर? उनमें सेंट्री वंट्री नहीं लिखना है. सेंट्री किसमें आएगा? सिर्फ पेटी कैश है. गॉट इट? और लेजर पूछा तो यही बनाना, सारे बनाने की जरूरत नहीं. ओके. अगेन दिस इज मैनुअल पेटी कैश बुक. कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में ऐसा नहीं है. नॉर्मल एंट्री करते हो ना जैसे जर्नल एंट्री, वैसे ही होता है. समझो आपने पैम्पलेट खरीदा तो एडवर्टाइजमेंट 2 पेटी कैश. नॉर्मल लेजर एडवर्टाइजमेंट में 2 पेटी कैश में बाय एडवर्टाइजमेंट. नॉर्मल एंट्रीज ही होता है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में. ये सब मैनुअल बेसिस पे बनता है. कंप्यूटराइज में नॉर्मल जर्नल एंट्री के जैसा ही होता है. जो पोस्टेज पे किया तो पोस्टेज टू पेटी कैश. न्यूज़पेपर बेचा तो पेटी कैश टू सन्ड्री इनकम. गेटिंग इट? आपने कैरेज पे किया तो कैरेज टू पेटी कैश. रेंट पे किया तो रेंट टू पेटी, सपोज छोटा अमाउंट है. इलेक्ट्रिसिटी पे किया इलेक्ट्रिसिटी टू पेटी कैश. इज इट क्लियर? नॉर्मल एंट्री, नॉर्मल पोस्टिंग, नॉर्मल अकाउंट इन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग. दिस इज फॉर मैनुअल पोस्टिंग. मैनुअली कैसे करना है समझा? ये तो आता है अपने लेवल में किया. ये कैसे करना है क्या दिमाग में? इधर क्या आएगा? बाय सन्ड्री. सॉरी, पूरा अमाउंट एक साथ नहीं लिख सकते. नहीं, इंडिविजुअल कॉलम अकाउंट मेंशन करना पड़ेगा. पूरा टोटल एक साथ नहीं, इंडिविजुअल कॉलम्स करना पड़ेगा मेंशन. ट्राई करो सेकंड सब. या बैंक सन्ड्री आई एम डिस्कसिंग व्हाट आई एम डिस्कसिंग. देखो, petty cashier receives 255 to make him the balance equal to 300. बताओ, petty cashier receives 255 to make him the balance equal to 300. ऑलरेडी कितना था? 45 था. Is this right? 255 मिला, 300 बना on 1st Jan. अच्छा, एक और चीज, petty cash बुक हमेशा मंथली बेसिस पे बनता है कंपल्सरीली. 3 तरीके से बन सकता है. याद है? फोर्टनाइटली, मंथली या वीकली. वीकली भी हो सकता है. ये कौन सा है? कैसा पता चला? 12, 13, 14, 15 को खत्म हो रहा है तो इट इज फोर्टनाइटली. 15 को बंद करो, 16 को बंद करो. Whereas 30, 31 है तो मंथली. और वीकली कैसे पता चलेगा? 5, 6 को बंद हो रहा है तो 7 को बंद करो, 8 को बंद करो. गॉट इट? सुना? तो ये वाला फोर्टनाइटली है, 15 दिन का. सब सेम है, खाली इधर डेट है ना, क्लोजिंग का डेट क्या होगा? 15 और ओपनिंग का 16. क्लोजिंग इज 15, ओपनिंग इज कम ऑन. फर्स्ट वन, पेड कैरेज एंड पुलिस चार्जेस. कैरेज एंड कार्डेज. बॉट पोस्टल स्टैम्प्स, postage and telegram. Repairing charges, repairs and renewals. Advertisement and publicity. E-office file 6, box of paper, printing stationery. Subscription to Economic Times, sundry. Taxi fare, traveling conveyance. Marriage gift, sundry. कौन सा कॉलम है? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है.
तो सब्सक्रिप्शन भी करना है संडे संडे प्रिंटिंग स्टेशनरी है, पोस्टेज है, पोस्टेज टेलीग्राम है, ट्रैवलिंग है, कैरेज है, एडवर्टाइजिंग भी है, रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स है और सन्ट्री है। 7 हुआ ना? LF को गिन क्या? विदाउट LF 7। कौन सा देखो, प्रिंटिंग, पोस्टेज, ट्रैवलिंग, एडवर्टाइजमेंट, सन्ट्री, 2 और है, कैरेज एंड कार्टेज है और रिपेयर्स एंड रिन्यूअल। करो, ट्राई करो, मेक द लेजर आल्सो। पेटी कैश बनाओ और लेजर भी बनाओ, पेटी कैश अकाउंट। दैट्स द लास्ट प्रॉब्लम।
By office file. Each box of papers for Office file 16. इसका 6 into 3 क्या है? पूरा टोटल करो ना, 3 ऑफिस फाइल्स और 6 कितना होता है? 18 और 3 21। पेटी कैश बनाया? लेजर में बनाओ कि बनाओगे? बनाओ। खाली लेजर का डेट क्या आएगा आपका? 31/1 के जगह 15/1। लेकिन इधर लोचा होता है, बैलेंस मत करना, लेजर को बैलेंस मत करना। क्यों? देखो, पेटी कैश बुक है ना, ये जर्नल है। बोर्ड में देखो, ये जंगली पेटी कैश बुक इज अ जर्नल। ये 3 तरीके से बन सकता है, मंथली, वीकली, फोर्टनाइटली। लेजर मंथली, वीकली, फोर्टनाइटली नहीं बनता है। लेजर कैसे बनता है? मंथली। तो ये नहीं करना है आपको, खाली इधर 15 तारीख को टोटल लिख के छोड़ देने का, और एक खाली वो एंट्री आएगी आपकी टू कैश में बना सकते हो। एंड मेक द लेजर। जर्नल किया, पेटी कैश बुक बनाया, 15 को बंद करके 16 को ओपन किया। लेजर देख लो फटाफट। मुझे बताओ पहला तारीख को क्या आ रहा है आपका? 1 Jan 16। टू बैलेंस बीडी कितना है? 45। फिर पैसा आया ना, टू बैंक या टू कैश? टू कैश। फिर 15 तारीख बाय सेंट्रीज एज पर पेटी कैश बुक, बराबर है? ये कैरेज एंड कूली, सॉरी कैरेज एंड कार्टेज, कितना आ रहा है कैरेज एंड कार्टेज? 15। फिर दूसरा क्या है? पोस्टेज एंड टेलीग्राम कितना आ रहा है? 20। हेलो, रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स कितना आ रहा है? 25। एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी कितना आ रहा है? 25। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना आ रहा है? 21, बराबर है? हेलो, सब्सक्रिप्शन तो सन्ड्री में आएगा। सन्ड्री कितना आ रहा है? हाँ, टैक्सी फेयर तो ट्रैवलिंग एंड कन्वेयंस 40 मिला। अभी बस इसको बैलेंस नहीं करना है। बैलेंस कब होगा? मंथ एंड पे। खाली वो 16 तारीख को जो पैसा मिला ना,
उसका एंट्री वापस मारना पड़ेगा आपको। कितना पैसा कितना मिला पैसा? 242 मिला ना? 2 कैश मारा रहेगा अपने इधर, मिला? ये बैलेंस पेटी कैश बुक में होगा, लेजर में नहीं होगा। लेजर में कब होता है बैलेंसिंग? हाँ, मंथ एंड। ये पैसा आया, फिर वापस बाय सेंट्री वाला पार्ट आएगा नेक्स्ट 15 दिन के एंड पे, और फिर बैलेंस होगा। समझा क्या किया? यही वीकली होता तो 4 बार ये प्रोसेस होती। 2 कैश बाय सेंट्री, 2 कैश बाय सेंट्री, 2 कैश बाय सेंट्री, 2 कैश बाय सेंट्री, और फिर बैलेंस होता है। समझ आया? हेलो? लेजर में इधर आके छोड़ देने का, वापस नेक्स्ट 15 दिन का सेंट्री, और फिर बैलेंस होगा। ओके, इधर बैलेंस मत करो, 15 दिन के एंड में नो बैलेंस। दैट्स इट। बट सर कैश एक मिनट, कैश बुक इज मंथली। अच्छा ये पेटी ये पेटी क्या है? है